Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Food of Animals. Animals are living things. They need food to live. Food gives them energy and helps them to grow. Different animals eat different kinds of food. On the basis of the food they eat, animals can be divided into three categories. अच्छा देखिए, एनिमल्स आपके लिविंग थिंग्स हैं एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने की रिक्वायरमेंट होती है, ओके क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं. तो एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड. द फर्स्ट कैटेगरी इज herbivores. Some animals like cows, horses, sheep and goats eat grass or plants. Such animals are called herbivores. कुछ एनिमल्स आपके ग्रास या प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स, राइट. नेक्स्ट, कार्निवोर्स. Some animals eat flesh. They are called carnivores. Animals like lions, tigers and foxes catch other animals and eat their flesh. Whereas animals like hyenas, jackals and vultures eat the flesh of dead animals. Such animals are called scavengers. अच्छा देखिए, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. ओके, ये सारे आपके कार्निवोर्स हैं. अच्छा, अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे अगर हम इनकी बात करें, ये फ्लैश तो खाते हैं बट डेड एनिमल्स का. ओके, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है स्केवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी इज ओमनिवोर्स. Some animals like bears, rats, foxes and crows eat both plant and flesh. Such animals are called omnivores. अब कुछ ऐसे animals होते हैं जो plants भी खाते हैं, flesh भी खाते हैं. For example, all these animals. तो ऐसे animals को कहा जाता है omnivores. Okay? So herbivores जो plant या plant product खाते हैं, carnivores जो flesh खाते हैं, and omnivores जो plant and flesh दोनों ही खाते हैं. Okay? Feeding habits of animals. The feeding habit of an animal depends on the type of food it eats. The mouth, teeth, and even the body structure of an animal is suited to the type of food it eats. अच्छा देखिए, जो फीडिंग हैबिट होती है एनिमल की वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खाना खाता है, किस तरह का खाना खाता है. तो उनके जो माउथ, टीथ, यहाँ तक कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है एनिमल का, वो जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह से वो डिजाइंड होता है. ओके, हर्बीवोर्स. Grass-eating animals like cows, buffaloes and goats have very sharp front teeth. They first cut and swallow grass without chewing it. They do it till their stomach is full. Later, while resting, they bring it back into their mouth. Then they chew it slowly using their flat back teeth. This is called chewing the cud. The elephant has a thick and strong trunk. It uses it as an arm while eating. The elephant first plucks leaves, fruits, branches, etc. using its trunk. Then it puts them in its mouth. The elephant also sucks water in its trunk and then squirrels it into its mouth. अब जो से ग्रास ईटिंग एनिमल की हम बात करें तो उनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं. ये सबसे पहले अपने खाने को कट करते हैं, ओके, जैसे ग्रास इसको सॉलो करेंगे बिना उसको च्यू किए. उसके बाद ये जब तक इनका स्टमक फिल नहीं हो जाता तब तक करते हैं. फिर जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर से अपने खाने को ये माउथ में लेके आते हैं, फिर उसको थरोली चू करते हैं अपने फ्लैट बैक माउथ से. ओके, तो इसे कहा जाता है च्यूइंग द कड. एलिफेंट की काफ़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक होती है, अपनी आर्म की तरह इसको यूज़ करता है. ओके, तो पहले क्या करता है कि उससे अपना ये लीव्स है या फ्रूट्स है प्लग करता है, फिर अपने माउथ में वो डालता है. ओके, इसके अलावा ये वाटर जो है अपनी ट्रंक से ही सक करता है. ओके, rabbits love to eat fruits and vegetables. Rats and squirrels eat seeds and nuts. They have long and very sharp front teeth to bite such hard things. They take small bites repeatedly. It is called gnawing. अच्छा, rabbits को आपके fruits and vegetables बहुत पसंद होते हैं. Rats और squirrels की बात करिए, seeds खाते हैं और nuts खाते हैं. तो इनके जो front teeth होते हैं काफ़ी sharp होते हैं, जिससे bite करते हैं hard things को. तो ये छोटी छोटी bites लेते हैं repeatedly. ओके, और इसे कहा जाता है gnawing. ओके, और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है gnawing animals. Know the fact, an anglerfish lives deep inside the sea where it is very dark. It has a glowing light attached to its body which attracts other fish. When a fish gets too close, it catches and eats it. अच्छा, एक फिश है आपकी anglerfish. ये समुद्र में बहुत डीप रहती है, ओके, जहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है. तो इसके क्या होता है, इसकी बॉडी में ना ग्लोइंग लाइट अटैच्ड होती है.
तो इससे क्या होता है कि दूसरी जो फिशेज हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जैसे ही फिश इसके पास आते हैं ये उसको पकड़ लेता है और खा लेता है. ओके. कार्निवोर्स. Flesh-eating animals like lions, tigers, dogs and foxes have very sharp pointed and curved front teeth. They help them to tear flesh. Carnivores also have strong grinding teeth at the back of the mouth to chew flesh and bones easily. Flesh-eating animals जो होते हैं इनके काफ़ी sharp और pointed front teeth होते हैं. ओके, इससे को फ्लैश को टेयर करने में इनको हेल्प मिलता है. इनके ग्राइंडिंग टीथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं माउथ के बैक में, जिससे कि फ्लैश एंड बोन्स को ईजिली चू कर पाते हैं. ओके. Lizards and frogs use their tongue to catch insects to eat. A frog has long and sticky tongue. When a frog sees an insect, it shoots out its tongue. The insect sticks to the tongue. The frog rolls the tongue back into the mouth and eats insect. Snakes and pythons do not have proper teeth for chewing, so they swallow the animal's whole. अब lizards and frogs की बात करें तो अपनी टंग का यूज़ करते हैं इंसेक्ट को कैच करने के लिए. ओके, आपको पता है जो फ्रॉग है उसकी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है, तो अपनी जैसे ही इंसेक्ट दिखता है अपनी टंग को बाहर निकालता है. ओके, फिर इंसेक्ट उसकी टंग में चिपक जाता है, फिर उसे रोल करके वो अपने माउथ में वापस लेके आता है एंड देन इट ईट्स द इंसेक्ट. स्नेक्स एंड पाइथन्स की बात करें कि प्रॉपर टीथ नहीं होते हैं, तो अपने एनिमल्स को ये सॉलो कर देते हैं. ओके. अदर्स. डॉग्स एंड कैट्स लैप मिल्क और वाटर विद द टंग. An earthworm eats mud through an opening in its body. It feeds on the bits of dead animals and plants and mud. Dogs and cats को आपने दूध पीते हुए देखा है, वो कैसे करते हैं, वो लैप करते हैं अपनी टांग से, राइट. अर्थवर्म की बात करें तो ये मड को खाता है, इनकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है और उसके बाद में जो मड में डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं इसको ये खाता है. Bees and butterflies suck nectar from flowers using their long sucking tubes. Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of other animals. बीज एंड बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर का नेक्टर सक करती हैं, इनकी लंबी सी सकिंग ट्यूब होती है. मस्कीटोज एंड लीचर्स की बात करें ये ब्लड को सक करते हैं. ओके. फूड चेन. Animals eat either plants or plant-eating animals. So all animals directly or indirectly depend on plants for food. First, a plant-eating animal eats plants. Then a flesh-eating animal eats that plant-eating animal. Further, a larger animal eats the flesh eating animal and so on. In this way, a chain is formed which is called a food chain. Look at the following food chain. अच्छा देखिए, एनिमल्स या तो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं. सो जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, राइट. सबसे पहले देखिए प्लांट ईटिंग एनिमल जो है वो प्लांट्स को खाएगा, फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल उस प्लांट ईटिंग एनिमल को खाएगा, फिर फर्दर लार्ज एनिमल जो है उस फ्लैश ईटिंग एनिमल को खाएगा एंड सो ऑन. तो इस तरह से एक चेन बनती है जिसे हम कहते हैं फूड चेन. अब जैसे हम देखें एग्जाम्पल में ग्रास को खाया डेयर ने, डेयर को खाया लाइन ने. ओके, सो दिस इज द फूड चेन. फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. Domestic animals are very helpful to us. It is our duty to take care of them. We should feed them with healthy food. Some animals like cows, buffaloes and goats give us milk. Giving them grass and chopped straw with oil cakes and grains increases their milk producing capacity. Animals like horses, oxen, camels and donkeys are used for carrying load, pulling cart or plowing fields. Giving them grams, grains and pulses as food makes them stronger. Some birds like hens and ducks give us eggs. Many people eat their eggs as they are nutritious. We should give such birds grains, vegetables, peels, fruits, beans, etc. अच्छा देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्हें हेल्दी फूड दें. ओके, जैसे काउज बफलोज हैं, ये हमें मिल्क देते हैं. ओके, तो हमें इन्हें ग्रास, चॉप्ड स्ट्रॉ, ऑयल केक्स के साथ देना चाहिए. ओके, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं वो उनसे उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं आपके जो हमारे लोड को कैरी करते हैं. ओके, हमारे फील्ड्स को प्लाउ करते हैं, तो इनको ग्रेन्स, पल्सेस, ग्राम्स देने चाहिए जिससे कि ये स्ट्रॉन्गर बने. जो बर्ड्स हमें एग्स देती हैं, ओके, उन्हें हमें ग्रेन्स देना चाहिए, वेजिटेबल, पीस, फ्रूट्स, बीन्स, ये सभी. ओके, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बीच का डिफरेंस पता चला होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.